स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने एक्सप्रेशन डिराइव की फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट, but today we will derive an expression for the magnetic field induction at any point on the axis of the circular current. Okay, for that let's consider here a circular loop or a coil. दूसरा मार्कर यूज करेंगे यहाँ पे सर्कुलर लूप हम दे देंगे यहाँ पे। This is circular loop here, like this. This is circular loop. It is plane is perpendicular to the whiteboard. इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। It's plane. The plane of the coil is perpendicular to the whiteboard. Okay, and here is the center of the coil O, and this is here the radius. Suppose A be the radius of the circular coil, and we will draw an axis here. Dotted line से हम यहाँ पे दिखाएंगे axis of the circular coil. It is an imaginary line which is passing through the center of the circular coil and is perpendicular to the plane of the coil. And this axis is called axis of this line is called axis of what? The circular coil. Okay, this is the axis of the circular coil. It passes through the center. यहाँ से भी on other side as well. And now, what is our aim? Our aim is to determine, to derive an expression for the magnetic field induction at any point on its axis. This is its axis, and now we will consider a point somewhere here, point of observation P. इसका P नाम रखेंगे. P is a point of observation at which the magnetic field induction is to be determined. We will derive an expression for the magnetic field induction at point P due to this current loop. Is this clear? Due to this circular current. Okay. अब कैसे मेजर करेंगे? Suppose this point is at a distance R, या x से represent करेंगे. It is along x axis, तो x से represent करेंगे. X is the distance of the point of observation from the center of the circular loop. Is this clear? Okay. So P is the point of observation. यहाँ पे हमें magnetic field induction कितनी बन रही है वो मेजर करनी है. Do this current loop. Suppose I with the current flowing through this loop, I. इस तरह से दिखाएंगे. I is the current flowing through it. यहाँ से बाहर निकल रही है. ओके, इस तरह मैं दिखा रहा हूँ. This is the current loop. ठीक है, यहां से बाहर आ रही है करंट, यहां से. तो यहां पे मैं दिखा दूंगा डॉट से. डॉट represents the current is coming out perpendicularly from the whiteboard. Okay, यहां से the current is perpendicular to the whiteboard. क्रॉस से दिखाएंगे. ठीक है ना? It is entering perpendicular to the whiteboard. डॉट से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, यहाँ से क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. यहाँ से करंट बाहर आ रही है परपेंडिकुलरली, यहाँ से करंट एंटर हो रही है perpendicularly to the whiteboard. Okay, and now as the current is passing through this coil, what will happen? The magnetic field generates. तो यहाँ पे भी पॉइंट P पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो वही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के लिए हमें एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, वो देखना है कैसे डिराइव करते हैं, कैसे मेजर करते हैं. ठीक है, एंड फॉर दैट व्हाट वी डू, वी विल यूज हियर बायट-सावर्ट्स लॉ. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ, first step is that
the entire current loop is to be divided into large number of small infinitesimally small elements. ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे हिस्से करने हैं. एंड नाउ कंसिडर वन सच एलिमेंट. उनमें से एक एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे एट दिस पॉइंट, वन स्मॉल करंट एलिमेंट. ठीक है, तो उसकी लेंथ बहुत कम होगी, तो वो इस तरह से होगा. उसकी डायरेक्शन होगी करंट एलिमेंट की परपेंडिकुलर द कॉइल. ये होगी डायरेक्शन उसकी, इस तरह से दिखाएगी. इट विल बी द टेंजेंट. ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स DL हियर, DL करंट एलिमेंट. यहां से मैं दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे दिखा रहा है दिस DL. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको. ये कॉइल इस तरह से है, यहां से करंट बाहर आ रही है इन दिस डायरेक्शन, tangent to the coil, tangent to the loop, current loop, okay, circular current, tangent, it is coming perpendicularly out. यहाँ से इस तरह से जो लेंथ एलिमेंट होगा यहाँ पे वो इस तरह से होगा. At the top of the coil, the direction of current is like this, ऐसे anti-clockwise sense जब यहाँ से देखेंगे. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो करंट एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन होगी tangent to the coil perpendicular outwards. ठीक है ना, ये जो मैं यहाँ पे एरो दिखा रहा हूँ डॉटेड लाइन से, इट इज perpendicular outwards. ठीक है ना, सो इट इज perpendicular the white board. याद रखना, इट इज perpendicular the white board here, and therefore it makes an angle 90 with what? With the diameter which is passing through from this point. ठीक है, इसके साथ 90 एंगल बना रहा है. It is also perpendicular to the white board and perpendicular to the diameter drawn from this point, top point, through the center. Is this clear? Okay, याद रखना ये. And now ये एलिमेंट हमने कंसिडर कर दिया. अब then according to Biot-Savart's law, the magnetic field induction at point P due to this current element is given by dV is equal to mu naught divided by 4 pi I dl. This is current element cross R divided by R cube. Is this clear? What is R? R is the position vector of the point of observation with respect to this current element. तो यहाँ पे position vector ड्रा करेंगे. And now suppose this is the position vector here. तो इसके लिए गलत डिफरेंट इंक हम यूज करेंगे, ब्लैक इंक. ये पोजीशन वेक्टर हम ड्रा कर रहे हैं. ठीक है, और जो ये लाइन है ये भी हम ब्लैक मार्कर से ड्रा करेंगे. ठीक है, तो ये जो रेडियस है ये भी ब्लैक इंक से हम ड्रा करेंगे, ब्लैक मार्कर से. ओके, सो दिस इज द व्हाट वी कॉल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P विद रेस्पेक्ट टू द करंट एलिमेंट IDL. R से हम रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज द पोजीशन वेक्टर हियर. Is this clear? Okay. This is all the position vector of the point of observation with respect to current element IDL. Is this clear? Okay. Divided by R cube. Okay. ये है इसका contribution, the magnetic field, the contribution of this current element at point P towards the magnetic field is given by this. Keep it number 1. Now, whatever the direction of this small magnetic field to this current element, magnetic field induction at point P, इसकी direction क्या होगी? This direction is given by the law of vector product between the current element and the position vector. इनके दरमियान जो रूल है डायरेक्शन का, that is the right hand thumb rule, right hand rule, right hand screw rule, वो हम यूज करेंगे. ओके, यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन ऑफ द magnetic field induction at point P to this current element. Okay, try to see here. This is the coil. इस पे जो हमने टॉप करंट एलिमेंट ले लिया, इस पे जो डायरेक्शन है करंट यहाँ से बाहर आ रही है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट इन दिस केस. तो यहाँ से इस तरह से मैं दिखा दूंगा. एक सेकंड.
दिस इज आर हेयर, ठीक है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट। तो इनके दरमियान जो एंगल है इट इज 90। इज इज क्लियर? तो दिस इज DL, दिस इज R। ओके, अब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड नाउ the direction of magnetic field induction at point P according to this vector product is the dB magnetic field is always perpendicular to what, the plane containing DL and R। अब यहाँ पे देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन होगी एट पॉइंट P वो है परपेंडिकुलर टू DL and R according to vector product। अब R तो यहाँ पे है, where is DL? DL is current element is perpendicular to the white board। तो वो आपको कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे मैं इस मॉडल से दिखा दूंगा, ठीक है। दिस इज द सर्कुलर कॉइल एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। दिस इज द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। इट इज क्लियर? दिस इज द रेडियस, दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P here, and this is what I call the position vector। this is the position vector, okay, this is the position vector R, okay, this is the position vector। अब यहाँ पे जो करंट एलिमेंट होगा तो मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, करंट एलिमेंट इज परपेंडिकुलर, इट इज टेंजेंट टू द व्हाट, इट इज टेंजेंट टू द सर्कुलर कॉइल लाइक दिस। यहां से मैं दिखा दूंगा, इट इज लाइक दिस टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट टू द सर्कुलर कॉइल एंड इज परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड, ठीक है ना। एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू व्हाट, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। और जो पोजीशन वेक्टर इसके साथ भी 90 एंगल बना रहा है यहाँ पे। इज दिस क्लियर? ओके, दिस इज DL, इट्स पॉइंटिंग आउट, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर R। इज दिस क्लियर? इसका यहाँ पे एरो ड्रा करेंगे, पोजीशन वेक्टर R और इनके दरमियान DL एंड R के दरमियान जो एंगल है इट इज 90। नाउ अब डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन DB की जो एट पॉइंट P, इट्स परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये प्लेन कैसा है, ये प्लेन इस तरह से नहीं है, इट इज लाइक दिस, इस तरह से ये प्लेन है, ठीक है ना, ये है प्लेन। इज दिस क्लियर? अभी मैं दिखा दूंगा प्लेन भी। ओके, दिस इज द प्लेन हियर, दिस इज द प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड। इसी पे यहां से लाई कर रहा है, दिस इज R, ठीक है। तो यहां से निकल रहा है, यहां से करंट एलिमेंट IDL इज करंट एलिमेंट, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, एंड बोथ आर लाइंग वेयर ऑन अ प्लेन। दिस इज द प्लेन, द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड एंड इज मेकिंग एन एंगल विद व्हाट, विद द एक्सिस ऑफ द कॉइल, यहां पे एंगल बना रहा है। दिस इज द प्लेन, इस प्लेन पे दोनों लाई कर रहे हैं। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा परपेंडिकुलर? या वो परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, या नीचे की तरफ से होगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज नाउ डिफाइंड बाय व्हाट, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, होल्ड योर राइट हैंड, stretch your right hand in the direction of current element। this current element बाहर आ रही है तो I have to hold it like this, ठीक है, I am holding it like this, ठीक है। then so that you can, इस तरह भी रख सकते थे और हमें इस तरह से रखना है, so that we can curl our fingers towards R। देखिए, और ऐसे रखेंगे stretched, ठीक है ना। so in this case we are not able to curl our fingers towards R, ठीक है, तो ऐसे रखना पड़ेगा। नाउ वी कैन कर्ल आवर फिंगर्स टुवर्ड्स R। सो व्हाट इज द डायरेक्शन, इट इज परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है अपवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट दिस टॉप, करंट एलिमेंट इज परपेंडिकुलर दिस प्लेन अपवर्ड्स, इस तरह से DB इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ओके, तो यहां पे मैंने ये बना दिया इस तरह से मॉडल में, दिस सर्कुलर कॉइल। ओके, यहाँ पे करंट एलिमेंट ऊपर ले लिया हमने छोटा सा इस तरह से, दिस करंट एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन है। तो यहां से ये पोजीशन वेक्टर है और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड होगा
perpendicular this plane, perpendicular this plane, ये देखिए इस तरह से perpendicular the plane. Is this clear? Upwards. And now ये यहाँ पे आप लोगों ने देखा इसकी डायरेक्शन, magnetic field इंडक्शन की डायरेक्शन. And now suppose it's making an angle theta with what? With the axis of the circular coil. इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है. And now ये मैग्नीट्यूड, यहां से इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे. Magnitude of the magnetic field induction at point P is given by dB is equal to mu naught divided by 4 pi I dl sin, यहाँ पे R भी आ जाएगा, R sin थीटा, हमने इस एंगल का नाम रखा है थीटा, तो इसका नाम रखेंगे बीटा डिवाइड बाय आर क्यूब. ओके, एक आर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. एंड व्हाट इज एंगल बीटा हियर? इट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर. तो वो मैंने पहले बता दिया. डीएल, दिस इज डीएल करंट एलिमेंट, दिस इज आर. इनके दरमियान जो एंगल है इट इज 90. ठीक है, ये 90 हर एक एलिमेंट के साथ होगा. अगर यहाँ पे एलिमेंट लेंगे वो भी 90 एंगल बनाएगा, यहाँ पे एलिमेंट लेंगे वो भी 90 एंगल बनाएगा. किसके साथ? आर के साथ, पुशन वेक्टर के साथ. सो बीटा जो है यहाँ पे इट इज इक्वल टू व्हाट? 90. तो इसके बदले 90 लिख सकते हैं यहाँ पे. सो इट विल बिकम म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज साइन 90 इज 1, तो डी एल बाई आर स्क्वायर आ रहा है. दिस इज the magnitude of the magnetic field induction generated at point P due to this current element at the top of the coil. ठीक है ना, उसकी वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ पे. तो डायरेक्शन भी हमने डिफाइन कर दी. Is this clear? And now keep it second. We will consider another element, current element, at diametrically opposite end पे. जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है वहां पे हम दूसरा करंट एलिमेंट कंसिडर करेंगे, वो यहाँ पे होगा. इज क्लियर? तो उसकी जो करंट एलिमेंट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट इज क्रॉस से मैंने दिखा दिया. तो क्रॉस का मतलब क्या है? इट इज परपेंडिकुलर इनवर्स. यहां से परपेंडिकुलर इनवर्स, सॉरी ये इंक से दिखा दिया यहाँ पे. इट्स परपेंडिकुलर इनवर्स, परपेंडिकुलर इनवर्स. Is this clear to you? So this is color element perpendicular inverse. ठीक है, अब इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है पॉइंट P, तो वो हम मेजर करेंगे. ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से आएगा. पहले यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे, दिस पॉइंट P हियर. तो पोजीशन वेक्टर ड्रा करना पड़ेगा. करंट I इसमें जा रही है, दिस द पोजीशन वेक्टर. Of point P. This is the position vector. This is the position vector here. R dash से रिप्रेजेंट करेंगे. Because it is different, इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी. मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन इज डिफरेंट. इस तरह से दिस द पोजीशन वेक्टर है. ओके, आर डैश से हमने रिप्रेजेंट कर दिया. अब इस करंट एलिमेंट की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन होगा एट पॉइंट पी, इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे. सेम करंट, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, द डिफरेंस इज इन द डायरेक्शन, अदरवाइज द मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम. ठीक है, सो सिमिलरली the magnetic field at P due to diametrically opposite current element. ठीक है,
क्या होगा, डी बी डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो डी बी डैश, एंड इट वुड बी इक्वल टू, शाबाश, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड, तो वो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी एल, ठीक है, लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट डिवाइड बाई आर स्क्वायर या आर डैश स्क्वायर, आर डैश इज इक्वल टू आर, देयर इज नो डिफरेंस, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज क्लियर, दिस इज थर्ड, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ दिस the dB dash magnetic field due to this current element, second current element at point P, तो डिफाइन करेंगे किससे, क्रॉस प्रोडक्ट से, in this case it's R dash here now, this is IDL and this time it is perpendicular inwards, it's perpendicular inwards, तो इस तरह से दिखाएंगे, मान लीजिए this is here R dash, okay, like this, and यहाँ पे जो current element है it's perpendicular inwards IDL, यहाँ से भी ये 90 एंगल बना रहा है, it's perpendicular inwards, it's a plane like this, इस तरह से प्लेन है, इस तरह से प्लेन है, is this clear, this is the plane, अब डायरेक्शन ऑफ डी बी डैश एट पॉइंट पी, यहाँ पे डायरेक्शन देखनी है, तो क्या होगी वो डायरेक्शन, यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर दिस प्लेन, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप है, वो किस तरह से होगा, या इस तरह से होगा या डाउनवर्ड होगा, इस तरह से, या इस प्लेन के ऊपर से ये परपेंडिकुलर होगा या नीचे से परपेंडिकुलर होगा, इज क्लियर, दैट इज डिफाइंड बाय द दिस वेक्टर प्रोडक्ट या राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है, होल्ड योर राइट हैंड, स्ट्रेच राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट एलिमेंट, ये रख दिया, सो दैट यू कैन कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स आर, मगर यहाँ ऐसे हम कर्ल नहीं कर सकते, ठीक है, सो आई हैव टू होल्ड इट लाइक दिस, ठीक है, नाउ वी आई एम इन अ पोजिशन टू कर्ल आवर फिंगर्स टुवर्ड्स आर, ये इस तरह से, थंब की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इट वुड बी perpendicular downwards, इस तरह से, this will be the direction of dB dash, is this clear, ये मैंने समझा दिया यहाँ पे, so direction of dB, इसका जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे परपेंडिकुलर दिस प्लेन होगा, दो प्लेन बन रहे हैं, एक प्लेन यहाँ पे, इस प्लेन पे यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, इसकी इस करंट एलिमेंट की जो कंट्रीब्यूशन होगा उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो इस एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी, उसकी डायरेक्शन होगी ये डीबी डैश, इज दिस क्लियर टू यू, ओके, अब देखिए फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू dB dash, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई DL डिवाइड बाई R स्क्वायर, दिस इज फोर्थ इक्वेशन, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों का कंट्रीब्यूशन एट पॉइंट P जो है वो सेम है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, डायरेक्शन इज डिफरेंट, ओके, और जो एंगल ये बना रहे हैं इसके साथ यहाँ पे थीटा से हमने रिप्रेजेंट किया, इतना ही एंगल ये भी बनाएगा, dB dash, is this clear? So as the two vectors having same magnitude and are inclined at the same angle this axis of the circular loop. So what I mean to say, two vectors है dB dash and dB, इनका रिजल्ट देखते हैं. What is the result of this dB dash and dB? The result of these two dB and dB dash act along the axis. Act along the axis of the circular loop. Why? It is because of two reasons. Number one, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और बोथ जो एंगल बना रहे हैं वो भी सेम है, विद व्हाट, विद द एक्सिस. अब अगर इनका रिजल्टेंट देखेंगे, हम अगर पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेलल ऑफ वेक्टर्स हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आएगा वो, तो उससे पता चलेगा जो दोनों का रिजल्ट है वो होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप.
pointing outwards. ठीक है, this will represent the result of these two. Is this clear to you? Okay, so it means that जो इनके other components है which are perpendicular this axis, वो cancel out हो जाएंगे with each other, क्योंकि वो इक्वल अपोजिट होंगे. कैसे, यहां पे मैं दिखा दूंगा. if we resolve dB into its two rectangular components. ठीक है, नंबर 1 क्या होगा, एक कंपोनेंट यहां से मैं दिखा दूंगा. अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहां एक कंपोनेंट आएगा इस तरह से यहां तक. तो यहां से एक और एक्सिस ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ सर्कल. दूसरी लाइन हमने ड्रा की अभी, इस पर दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहां तो दूसरा कंपोनेंट आएगा. दिस इज द बेस कंपोनेंट. तो ये बेस कंपोनेंट कितना होगा, dB cos ऑफ थीटा. ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये होगा dB sin थीटा. ठीक है, सो dB एक कंपोनेंट है, dB cos ऑफ थीटा एक्टिंग along axis of the circular loop. इसी तरह से नंबर 2 सेकंड कंपोनेंट है, इट इज dB sin theta. Sin theta. The second component is dB sin theta. It is acting perpendicular to axis upwards. ठीक है ना. इसी तरह से we will see the two components of two rectangular components of dB. इसके टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, dB डैश के, वो दो होंगे. एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करेंगे तो यहां से एक कंपोनेंट आएगा, यहां से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, दूसरा कंपोनेंट यहां से आएगा. ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस सेम होगा, और दोनों जो इसके वाई कंपोनेंट्स है अलॉन्ग वाई एक्सिस, उसका वही मैग्नीट्यूड होगा जो इसके वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा. तो ट्राई टू सी हियर. नंबर 1 इसका कंपोनेंट आएगा dB डैश cos ऑफ थीटा एक्टिंग along axis and axis of the circular loop, axis of circular loop of circular loop. ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट होगा dB डैश sin थीटा एक्टिंग perpendicular to the axis. ओके, ये perpendicular to the axis होगा but downwards. perpendicular to the axis downwards यहां पे लिखेंगे. यहां पे ये होगा upwards. Is this clear? और इसकी डायरेक्शन होगी towards along axis of the circular loop towards left. This is also towards left. इसकी डायरेक्शन. ओके, अब अगर दोनों को हम कंबाइन करें, दोनों का नेट देखेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P. अब देखिए, ट्राई टू सी हियर, वी हैव टू ऐड दीज कंपोनेंट्स. दिस कंपोनेंट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट. सॉरी, दिस इज टुवर्ड्स राइट. यहाँ पे लेफ्ट मैंने लिखा, ये राइट लिखेंगे. टुवर्ड्स राइट, दिस इज टुवर्ड्स राइट. ओके, तो इनकी डायरेक्शन सेम है. दे विल एड अप व्हाट, this base components, the base component of dB and base component of dB dash will add up. Okay, what about their perpendicular components? इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड. दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है. देयरफॉर these two cancel out each other. These two will cancel out each other. ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. एंड दीज टू ये एड अप हो जाएंगे. दीज टू विल एड अप. इज दिस क्लियर टू यू? तो दोनों का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कैंसिल होगा एंड खाली इनके जो बेस कंपोनेंट्स है वो एड अप हो जाएंगे. सिमिलरली
if we consider another pair of diametrically opposite current elements, एक यहां दूसरा यहां, ठीक है, उन दोनों का कंट्रीब्यूशन इसी तरह से यहां पे क्या होगा, एक का भी होगा dV1, दूसरे का होगा dV2, लाइक सपोज, ठीक है। तो जब हम उनको रिजॉल्व करेंगे, उनके जो परमिनल कंपोनेंट्स वो आपस में अपोजिट होंगे एंड इक्वल, बट जो उनके कंपोनेंट्स होंगे along this axis of the circular loop, ठीक है, वो ऐड हो जाएंगे। इज दिस क्लियर टू यू? इसी तरह से जितने भी पेयर्स हम ले लेंगे, पेयर ऑफ ऑल द पेयर ऑफ व्हाट डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स जो हम लेंगे, तो उनके जो परमिनल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, while देयर ऑल दिस वन कंपोनेंट दैट इज बेस कंपोनेंट वो ऐड हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? सो जो नेट होगा, अब यहां पे ये मैंने समझा दिया यहां पे। तो वन थिंग इज क्लियर, तो हर एक करंट एलिमेंट जो है उनका जो बेस कंपोनेंट होगा वो ऐड हो जाएगा, और उनका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो किसी न किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर इनका खाली एक ही कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, दैट इज द बेस कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे इन पेयर्स। इज दिस क्लियर टू यू? तो खाली कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं? बेस कंपोनेंट्स। इज दिस क्लियर टू यू? सो ईच current element contribution आप लिखिए, contribution due to each current element is given by each current element to the net magnetic field at T is, वो क्या है? dV cos of theta, ठीक है ना? dV cos of theta is the contribution from each and every current element to the net magnetic field induction at point P. और उनका जो डायरेक्शन होगी, हर एक की तरफ से जो डायरेक्शन होगी, it would be towards along this axis of the circular loop towards the right, okay? And therefore net magnetic field at T is given by integrating this over the entire current loop. Integration करेंगे, net magnetic field would be equal to integral of dV cos of theta over the entire circular loop. क्लोज सर्कुलर लूप है यहाँ पे, तो क्लोज सर्कुलर लूप ले लेंगे, और एंटायर क्लोज सर्कुलर लूप। इज इट क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे दिखा देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dB. व्हाट इज dB? dB इज म्यू नॉट I और द एंटायर सर्कुलर लूप डिवाइडेड बाय 4 पाई dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू cos ऑफ theta. Okay. Now what about this theta? Cos theta is यहाँ पे this is theta, then this angle would also be equal to theta. About the geometry, from the geometry, जो angle यहाँ पे बन रहा है between this and the axis, dB and axis of the circular loop, वो theta है, तो यहाँ पे भी ये theta ही होगा। क्यों? Because ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इस तरह से ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये दो आपस में परपेंडिकुलर, ये दो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? इस राइट एंगल का की एक आर्म, ठीक है ना, दूसरे राइट एंगल के एक आर्म के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इनके जो दूसरे आर्म्स है वो भी उतना ही एंगल बनाएगा। जो इनके सेकंड जो आर्म्स है, एक राइट एंगल की ये आर्म है, दूसरे राइट एंगल की ये आर्म है, उनके दरमियान भी उतना ही एंगल होगा थीटा। इज दिस क्लियर? सो इन दिस and there's a triangle, right triangle O, इसका नाम रखेंगे यहाँ पे, this is O, this is A, this is B here, O
ए बी, ओ ए, यहाँ पे इसका नाम रखा था हमने पी, तो यहाँ पे पी आएगा। ओ ए पी इज द राइट ट्राइंगल, एंड दिस राइट ट्राइंगल, इस राइट ट्राइंगल की बात मैं कर रहा। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज curly black hair, base, this is base, hypotenuse, base divided by hypotenuse is r, okay? So cos theta is a by r, so we can write therefore b is equal to integral of, तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, 4 पाई इज कांस्टेंट, और स्क्वायर इज कांस्टेंट, ठीक है? और स्क्वायर और इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, देयर विल नो चेंज इन द डिस्टेंस ड्यू टू सिमेट्री। सो म्यू नॉट बाहर आएगा, आई भी बाहर आएगा, 4 पाई भी बाहर आएगा, ठीक है? यहां से 1 बाई आर स्क्वायर है वो भी बाहर आएगा, एंड ड्यू टू सिमेट्री दिस थीटा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, एज इज क्लियर। ये कॉस थीटा भी बाहर आएगा, एंड देयर रिमेन्स इनसाइड डी एल, ओके? वी कैन राइट एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, दिस इज एल नॉट, इट इज 1 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा 1 बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा के लिए ये पुट करेंगे, इट विल बिकम ए बाई आर इंटीग्रल ऑफ डी एल, ओके? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस विल बिकम म्यू नॉट आई, दिस विल बिकम ए हियर 4 पाई आर इंटू आर, ए बनेगा आर क्यूब, दिस इंटीग्रल ऑफ this integral with respect to length, it gives what total length of the circular current loop, ठीक है? जो current loop है इसकी total length, and the total length of the circular loop is the circumference of the circular loop, and is equal to 2 pi, इसका radius है a. Is this clear? So we can write as mu naught I, यहाँ पे आएगा 2 कैंसल, पाई कैंसल हो जाएगा, म्यू नॉट आई ये बनेगा ए स्क्वायर, इज क्लियर? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, यहां से 2 कैंसिल हो गया, पाई भी 2 रहेगा, यहां पे नीचे ट्वाइस आर क्यूब, इज दिस क्लियर? व्हाट इज दिस आर? यहां पे लिखेंगे दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द एंटायर सर्कुलर loop at the point P. It can also be written as, again in right triangle OAP, ठीक है? What is hypotenuse? This hypotenuse is R. It is equal to under root of a square plus x square. या we can write इस तरह से लिखें, पहले x square plus a square लिखेंगे, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पे ये पुट करेंगे, therefore the magnetic field induction at point P to the entire current element, the entire current loop is given by mu naught I a square divided by twice under root of, ये बनेगा under root, फिर क्यूब आएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं इसका, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज पावर 1/2, तो ये बनेगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक्चुअली पुट करना है, आर के बदले पुट करना है, इज इट क्लियर? ये पुट कर दिया, यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे 1/2, ये बनेगा 3/2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P, ठीक है? ओके, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P टू दिस करंट लूप इफ देयर आर एन टर्न्स। ये खाली एक टर्न के लिए हमने दिखा दिया, एक लूप है जैसे कि ये एक सिंगल लूप, अगर इस तरह से 2 लूप्स होंगे, इस तरह से 2 लूप्स, तो ये बनेगा ट्वाइस, 3 लूप्स 3 टाइम्स। अब देयर आर n टर्न्स, 1 loop is called 1 turn, suppose there are n turns, then the magnetic field induction would be equal to mu naught Ni a square divided by twice x square plus a square raised to power 3/2। ठीक है? इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ऊपर भी पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एंड नाउ दिस पाई ए स्क्वायर पाई,
is called here, यहाँ पे लिखेंगे हम, since A is the radius of the loop, therefore area of the loop, क्या होगा, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा पाई रेडियस स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होगा, ये होगा एरिया के बराबर, एरिया ऑफ द लूप। देयरफॉर द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, while capital A is the area of the loop, इसका एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस या 2 पाई लिखेंगे, 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पावर 3/2, and now, or it can also be written as mu naught n I। अब यहां पे देखिए, जो यहां पे एन आई है, एन आई ए, हेयर एन आई ए, ये स्क्वायर नहीं है, ये खाली ए आएगा यहाँ पे एरिया। तो एन आई ए, व्हाट इज एन आई, इज द नंबर ऑफ, यानी कि एन आई इज द करंट थ्रू दिस कॉइल, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड ए इज एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, ये हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इज क्लियर टू यू। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसी तरह से है जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में, मैग्नेटिक डाइपोल में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। इज क्लियर। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मोमेंट होता है वो पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देयर, the distance between them is L, so QL is the electric dipole moment. Similarly here, the magnetic dipole moment, ठीक है ना, ये it acts as a, so it means that the current loop acts as a what, magnetic dipole। जिस तरह से electric dipole होता है इसी तरह से magnetic dipole भी है, ठीक है ना। जब करंट पास करेंगे थ्रू द करंट लूप, इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, इसका नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा, तो इट एक्ट्स ए मैग्नेटिक डाइपोल, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चलकर। And this is called a magnetic dipole moment। ये इसकी strength होगी, strength of the dipole, which is called a magnetic dipole moment, NAI। NI is called ampere turns, A is the area of the loop। Therefore, the magnetic field induction at point P due to the current loop is equal to mu naught NI, A के बदले लिखेंगे M divided by twice pi x square plus A square raised power 3/2। This is the final expression for the magnetic field induction at point P in terms of magnetic dipole moment। Is this clear? तो एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी, जो करंट लूप है इट एक्ट्स एज मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि इसका नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा, जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। जिस तरह से बार मैग्नेट में होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह से इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। Is this clear to you? This is the general expression for the magnetic field induction at any point on the axis of the circular loop। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होगा तब भी हमें पता चलेगा मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितनी होगी। अगर ये पॉइंट पी लाई कर रहा होगा कहाँ पे, सेंटर पे, तो हमें पता चलेगा सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा। ये दिस स्पेशल केस, जैसे हमें जो हमने ऑलरेडी डिराइव की थी एक्सप्रेशन उसके लिए, तो ये जनरल एक्सप्रेशन है उसके लिए, इसमें से वो एक्सप्रेशन भी निकलेगी। स्पेशल केस इफ पी लाइज एट द सेंटर, सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है। देन उस वक्त क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगी x, ये 0 बनेगी, देन x विल बिकम 0 एंड दिस इक्वेशन विल बिकम d इज इक्वल टू म्यू नॉट m डिवाइड बाय 2 पाई, यहाँ पे x 0 बनेगा, इज दिस क्लियर।
तो ये आएगा ए स्क्वायर स्क्वायर रूट तो ए क्यूब आएगा यहाँ पे। इज दिस क्लियर? तो स्क्वायर कैंसल ए क्यूब। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो ये वैसी एक्सप्रेशन निकली है जैसे हमने पहले वाले वीडियो में दिखाया किस तरह से वो कैलकुलेट करते हैं, किस तरह वो डिराइव करते हैं। यहाँ पे खाली हमने इंट्रोड्यूस किया है एम। अगर एम के लिए वापस वैल्यू पुट करेंगे, एम इज इक्वल टू व्हाट, एन आई ए, तो यहाँ पे आएगा ये बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, एम के बदले एन आई ए लिखेंगे डिवाइड बाई 2 पाई, यहाँ पे आएगा ए क्यूब। ओके, या इस तरह भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई ए किसके बराबर है, एरिया ऑफ द लूप, वो किसके बराबर है, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 पाई ए क्यूब, पाई पाई कैंसल, 2 ए इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 ए। इज दिस क्लियर यू? तो यही एक्सप्रेशन हमने निकाली थी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द center of the circular loop. Is this clear to you?